Good evening, everyone. Once again, welcome to the organic session for the last chapter, which is there in your organic syllabus. It is biomolecules. A very simple chapter, but there are some misconceptions related with this chapter. The first misconception is that as the name starts with biomolecules, the mathematics students they believe that the chapter is not meant for them. जैसे बायो स्टूडेंट्स का ना फिजिकल केमिस्ट्री में एक बहुत कॉमन एक्सक्यूज होता है, सर न्यूमेरिकल्स नहीं होते. सेम वे मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को यहाँ पे एक एक्सक्यूज मिलता है, सर बायोमोलिक्यूल्स सारा हो गया बस बायोमोलिक्यूल्स नहीं हुआ. एक चीज आपको क्लियर कर दूं, चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल्स, बट इट इज purely chemistry only. Why it is biomolecules, that you will understand in a short duration. These biomolecules are nothing, they are the molecules because of which our life continues and sustains. In a short time you will get to understand this, that today here the group of biomolecules are going to talk about biomolecules. Biomolecules means those molecules which are there in the composition of the living creatures. जो living creatures के body composition में present हो, those molecules are biomolecules. Like carbohydrates, proteins, alkaloids, steroids, nucleic acids, DNA and RNA, vitamins. These are the molecules which are involved in our body composition as well as in all the processes which takes place at cellular level in our body. हमारे बॉडी में जो भी सेलुलर रिएक्शंस हो रहे हैं, जिनको हम बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं, उस पूरे बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए these molecules are responsible. Their involvement is there in those reactions. Carbohydrate, proteins, vitamins, nucleic acids, then alkaloids, steroids. ये जो आप different hormones पढ़ते हो, they are also biomolecules only. So that is why in this chapter we are going to study 4 important biomolecules. 4 important biomolecules हम इस chapter में पढ़ने वाले हैं. First we will start with carbohydrates. Carbohydrates के बाद next we will see proteins. After proteins we have to study vitamins. Vitamins में we don't have to study the structure. Vitamins में only the simple classification of vitamins and their deficiency disorders. And the last one is nucleic acids, DNA and RNA. एक छोटा सा पैसेज हॉर्मोन्स रिलेटेड भी आएगा, वो हार्मोन रिलेटेड भी पढ़ लेंगे, जो आप 9th और 10th में ऑलरेडी पढ़ के आए हो. 9th 10th में तो बायो पढ़ा ही होगा आपने, तो दैट यू मस्ट ऑलरेडी हैव कवर्ड. This chapter has a weightage of around 7 marks in board examination. एक ऐसा टाइम था जब CBSE में इस चैप्टर का वेटेज मात्र 3 मार्क का था. This chapter was of 3 marks only, and at present this chapter is one among having the high weightage, that is of 7 marks. 7 मार्क का चैप्टर है और बहुत सिंपल सा है. सबसे पहले दिमाग में से ये निकाल के रख दीजिए कि हम बायो मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं. बायो टर्म जैसे ही दिमाग से हटा दोगे ये क्लियर है, क्योंकि अभी आप सभी मैथमेटिक्स स्टूडेंट हो. दिस शुड नॉट बी एक्सक्यूज इन द फ्यूचर दैट सर ये तो बायो मॉलिक्यूल्स है, ये चैप्टर पढ़ने नहीं पड़ता. ये कभी भी मुझे सुनने में नहीं आना चाहिए. ठीक है, चलिए. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ कार्बोहाइड्रेट्स फर्स्ट.
carbohydrates are the most abundant naturally occurring organic compounds. They are the most abundant of all naturally occurring organic compounds. And in the earlier days, the compounds which were isolated or which were obtained from the natural sources under this group was found to follow a formula CxH2OY. अर्लियर डेज में इस पर्टिकुलर ग्रुप के जो भी कंपाउंड मिल रहे थे, दे were found to have this common formula CxH2OY. तो आप देख रहे हो, दिस इज नथिंग, इट इज हाइड्रेट ऑफ कार्बन, है ना. H2O मीन्स हाइड्रेट हुआ और यहाँ कार्बन है तो हाइड्रेट ऑफ कार्बन. So from here itself the name carbohydrate was assigned to them. जैसे एक छोटा एग्जांपल बताता हूं. ग्लूकोज का फॉर्मूला तो सभी को याद होगा, बोलो ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6. This can be written as C6H2O6. लिख सकते हैं ना. It can be written like this. It is hydrate of carbon. नहीं, it is obeying to this formula. So according to the earlier definition, the compounds which are hydrate of carbon were called carbohydrates. But soon this particular definition had limitations. क्या limitation आया? That all the compounds which obey this formula may not be carbohydrate. ऐसा हो सकता है कि कंपाउंड इस फॉर्मूला को ओबे कर रहा हो, बट इट इज नॉट कार्बोहाइड्रेट. जैसे एक एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको. द एग्जांपल इज, व्हाट इज दिस कंपाउंड? कैन आई राइट दिस एज C2H4O2 and can I write it like C2H2O whole twice? है ना. It seems to be hydrate of carbon, but this is not carbohydrate. This is ethanoic acid. This is carboxylic acid. कार्बोहाइड्रेट नहीं है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है. तो ये लिमिटेशन हुआ ना कि कंपाउंड इस फॉर्मूला को ओबे कर सकता है, बट जरूरी नहीं कि वो कार्बोहाइड्रेट हो, राइट. एंड ऑल्सो देयर आर कार्बोहाइड्रेट which do not fit into this formula. जैसे C6H12O5, ये है रैमनोज. दिस इज रैमनोज, कार्बोहाइड्रेट है ये. रैमनोज इज अ कार्बोहाइड्रेट, but in spite of being a carbohydrate, you can see this is not fitting into the formula CxH2O whole y. आप इसको इसमें फिट नहीं कर सकते. तो ये जो डेफिनेशन दी गई थी, that hydrates of carbon are carbohydrates, it failed. We cannot call carbohydrates simply as hydrates of carbon. लेकिन नाम कहां से डिराइव हुआ था? नाम इसी फॉर्मूला की वजह से डिराइव हुआ था. As the earlier compounds were following or were obeying to this formula, from this formula itself the name carbohydrate was assigned. But later on two limitations arose. कौन से limitation थे? Compounds followed into this formula, fits into this formula, but are not carbohydrate. और दूसरा, compound is carbohydrate but is not fitting into this formula. ठीक है. Then chemist continued their investigation. और आगे उन्होंने अपनी जांच पड़ताल, अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूड रखी. और आगे इन्वेस्टिगेशन से उनको ये पता चला that carbohydrates are optically active, polyhydroxy
एल्डिहाइड्स और ketones or the compounds which produces such units upon their hydrolysis. ठीक है, तो आगे इन्वेस्टिगेशन से क्या पता चला, दैट कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, और it may be the compounds which produces these units, that means the compound which upon hydrolysis can produce a polyhydroxyaldehyde or polyhydroxy ketone, they are called carbohydrates. ठीक है, आ रहा है समझ में? क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है? ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, मीन्स प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करना चाहिए. दूसरी कंडीशन पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए, मीन्स OH ग्रुप एक से ज्यादा प्रेजेंट होने चाहिए, मल्टीपल OH ग्रुप मस्ट बी देयर. और तीसरी कंडीशन इट शुड हैव एन एल्डिहाइड और द कीटोन फंक्शनल ग्रुप, या फिर एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप विजिबल नहीं भी है तो अपॉन हाइड्रोलिसिस दैट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड, राइट? सो दिस इज व्हाट द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, आ रहा है समझ में? कैसे कैसे याद रखोगे? The name carbohydrate was given because earlier member followed this formula CxH2O full Y, right? But there are two limitations into this. First is compound fits into the formula but are not carbohydrates. Second is compound is carbohydrate but is not fitting into this formula. So we have a limitation. We cannot call carbohydrates simply as hydrates of carbon. आगे इन्वेस्टिगेशन से पता चला, केमिस्ट ने ये फाइंड किया दैट दीज आर द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन्स स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप. और काफी इन्वेस्टिगेशन के बाद दे गिव अ मॉडर्न डेफिनेशन फॉर कार्बोहाइड्रेट्स. द मॉडर्न डेफिनेशन फॉर कार्बोहाइड्रेट्स आर दे आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और द कीटोन्स और कंपाउंड्स व्हिच प्रोड्यूसेस सच यूनिट्स. दैट मींस कंपाउंड्स व्हिच प्रोड्यूसेस पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन अपॉन देयर हाइड्रोलिसिस. इनको क्या कहते हैं हम? कार्बोहाइड्रेट्स. इजी है. चलिए, कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकेराइड्स भी कहते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड सैकेराइड्स. और क्या नाम दिया गया इनको? सैकेराइड्स. एक्चुअली ये जो सैकेराइड्स नेम है ना, दिस नेम कम्स फ्रॉम सैकरॉन. सैकेराइड टर्म कहां से लिया गया है? सैकरॉन से. और सैकरॉन का मतलब होता है सुगर. सैकरॉन मीन्स सुगर. सो व्हाई कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड सैकेराइड्स? Because many of them are sweet in taste and are also called sugar. Carbohydrates are also called saccharides because many of them are sweet in taste and are also called sugar. इसमें एग्जाम्पल याद रखना. एग्जाम्पल है the sugar which you eat at home, सुक्रोज. घर पे जो आप चीनी खाते हो ना, सुगर, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है. कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है? सुक्रोज. ठीक है. इसमें एक चीज ये भी याद रखिएगा, ग्रीक टर्म सैकरॉन
इज इक्वल टू स्वीट और शुगर। ओके, इसी से नाम पड़ा है, इसी से क्या नाम पड़ा है, सैकराइड। इसी से इसको हम क्या कहते हैं, सैकराइड। ओके, क्लियर, यहां तक क्लियर है। चलिए देखिए, ये चीज जो है ना आपको इसकी समझ होनी चाहिए, बट ये आपको नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। तो कैन आई इरेज दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये स्पेसिफिक पार्ट इरेज करूं। प्रथम, स्विच ऑफ द मोबाइल एंड कीप इट वन साइड। या साइलेंट करके रख दो एक साइड। ओके, चलो, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ carbohydrates. So in this classification of carbohydrates, I am going to tell you about देखिए, there are different modes of classifying them। अलग अलग तरीका है इनको क्लासिफाई करने का। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन मैं बता रहा हूं, दिस क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड अपॉन हाइड्रोलिसिस। तो इसमें आपको तीन कैटेगरी बताने जा रहा हूं, मोनोसैकेराइड्स, सेकंड इज ओलिगोसैकेराइड एंड polysaccharides. Okay, so on the basis of number of units produced upon hydrolysis, carbohydrates are classified into monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides. अब मोनोसैकेराइड्स का क्या मतलब होता है, मोनोसैकेराइड्स का मतलब हुआ सिंपलेस्ट carbohydrates which cannot be hydrolyzed further। ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है एंड दीज कार्बोहाइड्रेट्स कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर। आप इसको आगे हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, ये सिंपल होता है ना। दे विल कंटेन ईदर एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप along with the polyhydroxy group, ठीक है, एंड दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, इसको आप हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, है ना। सो 20 मोनोसैकेराइड्स occur in nature and few examples I am writing over here। Example, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज या फ्रक्टोज जो भी बोलना हो, राइबोज, रैमनोज, रैफिनोज, एसेट्रा। एसेट्रा मीन्स ETC means enjoy the chemistry, enjoy the chemistry। सिंपल है ना हर्षित, ऐसा नहीं लग रहा है ना कि बायो पढ़ रहे हैं, इजी है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। चलिए अब है ओलिगोसैकेराइड्स।
ओलिगोसैकेराइड्स क्या है? ओलिगोसैकेराइड्स आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच प्रोड्यूसेस 2 to 10, जो 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्रोड्यूस करता हो अपॉन हाइड्रोलिसिस। फाइन। इसका नहीं, इसका यूनिट थोड़ी होगा। मोनोसैकेराइड यूनिट, मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड यूनिट का मतलब हुआ मोनोसैकेराइड्स, जो 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड्स देता हो हाइड्रोलाइज होने पे, उसको हम ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। ठीक है। सो कार्बोहाइड्रेट्स which produces 2 to 10 monosaccharides on hydrolysis, they are called oligosaccharides। ठीक है। Carbohydrates which produces 2 to 10 monosaccharides are monosaccharides on hydrolysis, they are called oligosaccharides। जो 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट्स या मोनोसैकेराइड्स प्रोड्यूस करता हो हाइड्रोलाइज होने पे, उनको हम क्या कहते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स। और इसमें स्पेसिफिक ये भी याद रखना है, इफ 2 monosaccharides are obtained on hydrolysis, it is disaccharide। अब देखो यहां पे ना ओलिगोसैकेराइड में भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। अगर हाइड्रोलिसिस पे 2 ही मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिल रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? डाइसैकेराइड्स। ठीक है। इसी तरह अगर 3 मिलता हो तो इफ 3 monosaccharide units are obtained on hydrolysis, क्या बोलेंगे प्रथम? इट इज ट्राइसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में भी टाइप हो जाएगा ट्राइसैकेराइड, राइट है ना, एंड सो ऑन। 4 मिल रहा हो तो क्या कहेंगे? टेट्रासैकेराइड। ओके, आ रहा है समझ में? चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं। एग्जाम्पल है सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज एसेट्रा। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सभी क्या हैं? दे कम अंडर द कैटेगरी ओलिगोसैकेराइड्स। किस कैटेगरी में आ रहे हैं? ओलिगोसैकेराइड्स। और ओलिगोसैकेराइड्स में भी दे स्पेसिफिक कम अंडर द कैटेगरी ऑफ डाइसैकेराइड्स, जिसमें सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस से यू गेट 2 मोनोसैकेराइड्स, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से क्या मिलेगा? दोनों अलग अलग मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे, एक ग्लूकोज मिलेगा और एक फ्रक्टोज मिलेगा। माल्टोज के हाइड्रोलिसिस से यू विल बी गेटिंग 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज, एंड लैक्टोज के हाइड्रोलिसिस से यू विल बी गेटिंग ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है। सो दिस इज हाउ। इसमें एक चीज और याद रखना है कि मोनोसैकेराइड्स विच आर फॉर्म्ड अपॉन हाइड्रोलिसिस, monosaccharides here which are formed on hydrolysis may be same or different।
हाइड्रोलिसिस पे, ओलिगोसैकेराइड्स के हाइड्रोलिसिस पे जो मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिल रहे हैं या मोनोसैकेराइड्स मिल रहे हैं वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे इसमें डिफरेंट है, इसमें सेम है, इसमें फिर डिफरेंट है। ओके, ये आगे भी आएगा, आगे पढ़ने को मिलेगा इसके हाइड्रोलिसिस वगैरह स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग यू आर गोइंग टू स्टडी। पॉलीसैकेराइड्स देखते हैं। पॉलीसैकेराइड्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स which produces more than 10 monosaccharides on their hydrolysis they are called polysaccharides। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनके हाइड्रोलिसिस से 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड्स प्रोड्यूस हो रहे हो उनको क्या कहेंगे? पॉलीसैकेराइड्स। दे आर एक्चुअली पॉलीमर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। क्या होते हैं ये? पॉलीमर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। दैट मीन्स अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स जॉइन हियर टू फॉर्म दिस पॉलीसैकेराइड। इसमें एग्जांपल में है, example is starch, cellulose, glycogen, गम, रेजिन जो आज लगता है प्रथम के पास बहुत ज्यादा है, एक्सेट्रा। हाँ प्रथम, ठीक है। प्रथम इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट्स, विटामिन्स, नॉट ऑफ गम। यस, चलिए, तो दिस इज वन मोड ऑफ क्लासिफिकेशन। वी हैव क्लासिफाइड कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ number of monosaccharides obtained upon their hydrolysis or on the basis of product of their hydrolysis. Now next classification में मैं आपको बताऊंगा that based on their nature carbohydrates are also classified as reducing and non-reducing sugars. Carbohydrates are also classified as reducing and non-reducing sugar। कार्बोहाइड्रेट्स को हम रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर के तरह भी क्लासिफाई करते हैं। कैसे क्लासिफाई करते हैं? एज रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, दैट यू विल अंडरस्टैंड हियर। रिड्यूसिंग शुगर्स are those carbohydrates which reduces tolerance reagent and Fallings reagent। reducing sugars क्या है? reducing sugars are those carbohydrates which reduces tolerance reagent and Fallings reagent। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग्स रिएजेंट से ऑक्सीडाइज हो जाते हो, मीन्स उनको तो रिड्यूस करेंगे ना। अगर टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट से कार्बोहाइड्रेट खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब वो टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग्स रिएजेंट को रिड्यूस कर रहा है।
हाँ, so reducing sugars are those carbohydrates which reduces tolerance reagent and Fehling reagent. इसका एग्जाम्पल हुआ, एग्जाम्पल इज माल्टोज. एग्जाम्पल क्या है इसका? माल्टोज. नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होगा? यस, नॉन reducing sugars do not reduces tolerance reagent and Fehling reagent. इसका एग्जाम्पल है सुक्रोज. आप जो चीनी खाते हो ना, सुक्रोज, उसमें सुक्रोज है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन द सुगर इज सुक्रोज. एंड सुक्रोज डू नॉट रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट एंड Fehling रिएजेंट. तो सुक्रोज इज एक्चुअली अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर. अब आप सोच रहे होंगे कि ये नॉन रिड्यूसिंग क्यों है. पहला दिमाग जो एल्डिहाइड कीटोन्स में पढ़ा है वो पहले माइंड में आता होगा कि जरूर इसमें कीटोन ग्रुप होगा, इसीलिए ये रिड्यूस नहीं कर रहा है, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है. यहाँ पे द एग्जैक्ट रीजन फॉर रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग नेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट यू विल अंडरस्टैंड ओनली आफ्टर अंडरस्टैंडिंग देयर स्ट्रक्चर. एक बार आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बता दिया, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बता दिया, सुक्रोज का स्ट्रक्चर बता दिया, माल्टोज का स्ट्रक्चर बता दिया, उसके बाद ही आप समझ पाओगे कि क्यों माल्टोज रिड्यूसिंग है और सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है. तो इसमें आपको थोड़ा पेशेंस रख के वेट करना पड़ेगा. अभी सिर्फ डेटा कोलेक्ट करते जाइए कि हाँ ये हमारे पास डाटा है, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग क्योंकि टॉलरेंस और Fehling रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता. माल्टोज इज रिड्यूसिंग बिकॉज इट रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट एंड Fehling सॉल्यूशन. ठीक है, चलिए. एक और क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट. मुझे लगता है कि ये जो स्पेस है ना यहाँ पे, इसमें मैं बता दूंगा आपको. देखते हैं, कोशिश करते हैं. यहाँ पे मैं थोड़े बॉर्डर बना देता हूं. So this classification is on the basis of number of carbon atoms present and the functional group present. कैसे? जैसे suppose if there are 3 carbon atom, अगर 3 कार्बन एटम हुए तो क्या कहेंगे? ट्रायोज. अब 3 कार्बन में अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो उसको कहेंगे आल्डो ट्रायोज, और अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो क्या कहेंगे? कीटो ट्रायोज. आल्डो ट्रायोज एंड कीटो ट्रायोज. यहां पे ऐसे लिख देता हूं CHO और यहां लिख देता हूं. इन शॉर्ट इससे पता चल जाएगा कि फंक्शनल ग्रुप क्या है. ठीक है, आ रहा है समझ में? चलिए, बाकी का लिख नहीं रहा हूं, वर्बली बता रहा हूं. इफ देर आर 4 कार्बन एटम्स, क्या बोलेंगे? टेट्रोज. अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो आल्डो टेट्रोज, और अगर कीटोन है तो कीटो टेट्रोज. हर्षित समझ रहे हो ये बात? पक्का? 4 को टेट्रा बोलते हैं ना, और OSE जो है ये कार्बोहाइड्रेट के लिए सफिक्स यूज करते हैं. ठीक है, इसी तरह अगर 5 हुआ तो पेंट और आगे OSE लगा दो, पेंटोज. अगर एल्डिहाइड ग्रुप हुआ तो आल्डो पेंटोज, अगर कीटोन हुआ तो कीटो पेंटोज. इसी तरह अगर 6 कार्बन है, हेक्सोज. एल्डिहाइड के साथ आल्डो हेक्सोज, और कीटोन हुआ तो कीटो हेक्सोज. अब ये आप बचपन से पढ़ते आए हो. छोटे बच्चे जब 6th 7th वाले बच्चे जब क्वेश्चन पूछते हैं ना तो बड़ा मजा आता है. 7th स्टैंडर्ड का बच्चा 7th में है, ग्लूकोज फ्रक्टोज पढ़ना है उनको, तो 7th वाला बच्चा जब पढ़ता है कि सर C6H12O6
this is glucose, right? But sir, C6H12O6 again is fructose. ऐसा कैसे हो जाता है सर? फॉर्मूला तो सेम ही है। अब आपको ये समझना है कि ग्लूकोज जो है ना, ग्लूकोज इज एन अल्डोहेक्सोज। ग्लूकोज क्या है? अल्डोहेक्सोज। ग्लूकोज इज अल्डोहेक्सोज एंड फ्रक्टोज इज कीटोहेक्सोज। आप इसको फ्रक्टोज भी कह सकते हो, फ्रुक्टोज भी कह सकते हो, ठीक है, चलता है इंडिया में। फ्रक्टोज फ्रुक्टोज बोथ आर चलेबल, ओके। तो दिस कंप्लीट्स क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आपका कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन अभी आपके सिलेबस में इतना है। अब हमें इसमें से दो मोनोसेकेराइड्स को स्टडी करना है। क्या स्टडी करना है? उसकी स्ट्रक्चर को स्टडी करना है और उनके रिएक्शंस, उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है। और दूसरा हमें स्टडी करना है तीन डाइसेकेराइड्स को, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। और दो पॉलीसेकेराइड्स को भी स्टडी करना है, सेलुलोज एंड स्टार्च, ठीक है। तो आगे हम प्रोसीड करेंगे, पहले आप ये नोट कर लीजिए, देन वी विल स्टार्ट विद ग्लूकोज, ओके। Okay, so after understanding classification of carbohydrates, now we are moving on to the discussion of the simplest monosaccharide, that is glucose. Glucose में क्या क्या पढ़ने वाले? पहले देखेंगे preparation of glucose, how it is prepared commercially. आपको पता है कि एक टाइम था जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेचुरल सोर्सेज से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता था, प्लांट और एनिमल्स से। बट मैंने ये भी बताया है आपको कि आज के डेट में 95% एंड अबव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज्ड फॉर कमर्शियल यूजेस। तो ग्लूकोज की भी सिंथेसिस होती है, और ग्लूकोज की सिंथेसिस कैसे की जाती है, दैट वी विल सी। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज पढ़ेंगे। देन वी आर गोइंग टू स्टडी द एविडेंसेस फ्रॉम विच वी विल फाइनली रिच और अराइव एट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी हम स्टडी करेंगे, लेकिन पहले कुछ एविडेंसेस को पढ़ेंगे कि किन एविडेंसेस के बेसिस पे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिया गया था। इसके बाद साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज आज मैं सोच रहा हूं कि उसको टाल दूंगा, नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज सबसे पहले हम ग्लूकोज स्टार्ट करते हैं। और ग्लूकोज का सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। बहुत सिंपल है प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। पहली मेथड है, यहां पे लिख रहा हूं, फर्स्ट मेथड है प्रिपरेशन का फ्रॉम सुक्रोज। Glucose can be prepared from sucrose. How? So sucrose upon hydrolysis, C12H22O11. This upon hydrolysis in presence of dilute sulfuric acid or dilute hydrochloric acid. मैं यहां सीधा H+ लिख देता हूं। ये मतलब है कि the H+ is coming from acid. It may be dilute hydrochloric acid or dilute sulfuric acid. ये जो कंपाउंड है आपका, this is sucrose. It forms equimolar mixture of C6H12O6, which is glucose, and C6H12O6, which is fructose. ठीक है, इजी। सेकेंड प्रिपरेशन है इसकी फ्रॉम स्टार्च।
देखिए स्टार्च जो है ना, स्टार्च इज नथिंग, इट इज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का पॉलीमर होता है ना। स्टार्च का फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं? स्टार्च का फॉर्मूला इज रिटन एज C6H10O5N, और इसके हाइड्रोलिसिस में वी एक्चुअली बॉयल इट विथ concentrated sulfuric acid, सॉरी नॉट कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से साथ बॉईल करते हैं एट 393 केल्विन एंड 2 to 3 atmospheric pressure. This gives you glucose. क्या मिलेगा इससे? Simply glucose is formed upon this reaction. So these two are the methods for commercial preparation of glucose at present. Industrially और commercially glucose की preparation कैसे की जाती है? ऐसे की जाती है, इन दो methods, ठीक है? By hydrolysis of sucrose and by hydrolysis of starch. इसके हाइड्रोलिसिस में डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दोनों यूज होगा। जस्ट सिंपली बॉईल करने पे आपको ये रिएक्शन मिल जाता है। यहाँ पे यू नीड टू बॉईल इट एट 393 केल्विन एंड ऑल्सो अ लिटिल हाई प्रेशर, 2 to 3 atm प्रेशर इज रिक्वायर्ड, ठीक है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ना हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे। ये नहीं कि हाँ स्ट्रक्चर लिख दिया, ये रहा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। फर्स्ट वी विल गो थ्रू ऑल द एविडेंसेस फ्रॉम विच द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज वाज डिटरमाइंड। तो उन एविडेंसेस में सबसे पहला एविडेंस मैं बता रहा हूं आपको, इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C6H12O6. The molecular formula of glucose was found to be C6H12O6. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन करने का, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने का देयर आर लॉट मेनी टेक्निक्स। आज के डेट में तो द टेक्नोलॉजी सो एडवांस दैट रेडीमेड सारा कुछ आता है, बस उसमें सैंपल फीड करना है और आपको सारा डिजिटली पता चल जाता है कितना परसेंट कार्बन, कितना परसेंट ऑक्सीजन, कितना परसेंट नाइट्रोजन, कितना परसेंट हाइड्रोजन, ये सब पता चल जाता है। बट अर्लियर डेज में देयर वर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स जिसके थ्रू परसेंटेज ऑफ कार्बन अलग निकाला जाता था, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन अलग, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन अलग, और उसके बेसिस पे फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिराइव किया जाता था, जो कि आपने पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, याद कीजिए। याद आ रहा है? अभी 3 महीने पहले मैंने पढ़ाया आपको क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जीओसी के एंड में बताया था, ठीक है, उसी में। तो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज वाज फाउंड टू बी C6H12O6, and a very important thing about glucose that it was found to be a dextrorotatory compound. So glucose is also known as dextrose. ग्लूकोज को और क्या नाम दिया गया है? डेक्सट्रोज। Why dextrose? As it is dextrorotatory, it rotates plane of polarized light towards the right, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट है, और सेकेंड इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये था, ग्लूकोज ऑन prolonged hitting with HI formed normal hexane, which shows that
all 6 carbon atoms in glucose are in straight chain. ग्लूकोज हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग पे क्या फॉर्म कर रहा था? नॉर्मल हेक्सेन फॉर्म कर रहा था। और इससे क्या पता चला? इससे ये कंक्लूजन निकला कि ग्लूकोज में 6 के 6 कार्बन आटम किस चेन में? लीनियर स्ट्रेट चेन में, ब्रांचिंग नहीं है। ठीक है, इसका रिएक्शन भी मैं यहां पे लिख देता हूं। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं लिख रहा हूं, दिस इज जस्ट द कंडेंस्ड फॉर्म। हर्षित, ये जस्ट कंडेंस्ड फॉर्म है, दिस इज नॉट द स्ट्रक्चर। फॉन्ट दिख रहा है आप लोगों को? So glucose on heating with with HI for the long time, it formed normal hexane, and इससे क्या inference मिलता है, क्या conclusion मिलता है? That all the 6 carbon atoms in glucose are in the straight chain. ठीक है हर्षित, क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है that which reaction of glucose showed that the carbon atoms are in straight chain. तो आपको ये रिएक्शन लिखनी होगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिएगा। ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिलामाइन formed oxime and with HCN it formed cyanohydrine, which shows the presence of carbonyl group in glucose. ग्लूकोज को जब हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्ट किया गया तो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ क्या फॉर्म किया इसने? हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ ऑक्साइम डेरिवेटिव बनाया, और हाइड्रोजन साइनाइड के साथ इसने क्या फॉर्म किया? साइनोहाइड्रिन। अब ये ऑक्साइम और साइनोहाइड्रिन आपने कहां पढ़ा है? कार्बोनिल कंपाउंड के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का प्रोडक्ट है, राइट? तो इससे क्या पता चला? इन दो रिएक्शन से ये पता चला दैट कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट इन ग्लूकोज। ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। मैं दोनों रिएक्शन यहां लिख के दिखा रहा हूं। क्या बातें हो रही है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या लग रहा है अभी आपको? हाँ बोलो। अच्छा, देखिए ग्लूकोज एंड हाइड्रोक्सिलामीन, तो ग्लूकोज और हाइड्रोक्सिलामीन में आप देखिए यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल का लॉस, और इस H2O मॉलिक्यूल का लॉस विल रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइम डेरिवेटिव। क्या बन गया यहाँ पे? ऑक्साइम। इट रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइम डेरिवेटिव। और
क्या करूं, साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन यहां पे दिखा देता हूं। This upon reaction with hydrogen cyanide gave साइनोहाइड्रिन डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन फॉर्म हुआ, राइट। तो इसका इन्फरेंस तो मैंने ऊपर ही लिख दिया है, दिस शोज प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। इससे क्या पता चल रहा है, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। चलिए अब नेक्स्ट एविडेंस पे मूव करते हैं। अब खुद सोचिए, कार्बोनिल ग्रुप तो पता चल गया कि इट हैज कार्बोनिल ग्रुप। अब हमें फाइंड करना है कि ये कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड है या कीटोन। यहां जो मैंने लिखा है उस पर मत जाओ, ये तो मुझे मालूम है, बुक में पढ़ा हुआ है, दिया हुआ है, केमिस्ट ने बता दिया है, इसलिए ये एल्डिहाइड ग्रुप मैं यहां लिख रहा हूं। लेकिन उनको कैसे पता चला कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप ही है, उसके लिए मैं एविडेंस बता रहा हूं आपको। तो ग्लूकोज gets oxidized with bromine water to a monocarboxylic acid that is gluconic acid. This shows CHO aldehyde group is present in glucose. ठीक है, ग्लूकोज जो है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडाइज हो रहा था, और ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडाइज होके ये क्या फॉर्म कर रहा था, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। इससे क्या पता चलता है, क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट। उसकी रिएक्शन यहां लिख रहा हूं। देखो फेलिंग टेस्ट जो है ना, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स भी देते हैं, इसीलिए ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला टेस्ट किया गया। इस कंपाउंड का नाम है ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, तो देखो क्या क्या एविडेंसेस अभी तक हमें मिल गया। हमें पहला एविडेंस मिला कि भाई इसका फॉर्मूला है C6H12O6। दूसरा, HI के साथ हीट करने पे नॉर्मल हेक्सेन बनाता है, मतलब 6 के 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में है। तीसरा, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ ऑक्साइन और हाइड्रोजन साइनाइड के साथ साइनोहाइड्रिन डेरिवेटिव बनाता है, इसका मतलब इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। दैट मीन्स ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसमें, वो कार्बोनिल ग्रुप किस फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, चलिए अब पांचवा एविडेंस देखिए। ग्लूकोज ऑन acylation formed a stable pentacetate derivative
which shows presence of 5 OH group on different carbon atoms. ठीक है, ग्लूकोज को जब असाइलेशन किया गया, एसाइलेशन और एसिटाइलेशन जब किया गया तो इसने क्या फॉर्म किया, पेंटा एसीटेट डेरिवेटिव। और ये पेंटा एसीटेट डेरिवेटिव बिल्कुल स्टेबल था, इट वाज अ स्टेबल पेंटा एसीटेट डेरिवेटिव। तो क्योंकि पेंटा एसीटेट बना इसका मतलब इसमें 5 OH ग्रुप है। असाइलेशन यहाँ पे किसका पॉसिबल होगा, OH ग्रुप का, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का। So there are 5 OH group in glucose and those 5 OH groups are on different carbon atoms. इसमें से कोई भी 2 OH सेम कार्बन पे नहीं है, सारे के सारे OH डिफरेंट कार्बन एटम्स पे। That is why the pentacetate is stable. इसकी रिएक्शन देखिए, असाइलेशन के लिए मैं यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज कर रहा हूँ। See, this is the pentacetate derivative of glucose and the pentacetate derivative of glucose shows that it is stable, which means there are 5 OH group and all the OH group are on different carbon atoms. सभी के सभी different carbon atoms पे हैं। ओके, अब क्या मैं यहाँ लिखूं, यहाँ लिखता हूं और उसका रिएक्शन यहाँ लिख दूंगा, चलेगा? On oxidation with nitric acid, both glucose and gluconic acid formed a dicarboxylic acid that is saccharic acid. ग्लूकोज और ग्लूकोनिक एसिड इन दोनों का ऑक्सीडेशन जब नाइट्रिक एसिड से किया गया, नाइट्रिक एसिड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडेशन पे ग्लूकोज और ग्लूकोनिक एसिड दोनों किसमें कन्वर्ट हो गए, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। उस डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड, सॉरी सैकरिक एसिड। Both glucose and gluconic acid gave saccharic acid on oxidation with strong oxidizing agent nitric acid. So let's see इससे क्या पता चलता है, वो मैं आपको यहां बताऊंगा। पहले इसकी रिएक्शन के लिए यहां डायरेक्शन दे दिया, यहां LOC भी ड्रॉ कर दी मैंने। अब यहां पे एक बार ग्लूकोज लिखूंगा और एक बार ग्लूकोनिक एसिड लिखूंगा। ये है ग्लूकोज, अपॉन ऑक्सीडेशन विथ नाइट्रिक एसिड और रिजल्ट्स इनटू a dicarboxylic acid which is saccharic acid.
दिस इज ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, आई थिंक ये HNO3 दिख रहा है आपको, एक बार थोड़ा सा और क्लियर लिख देता हूं। ठीक है, दिस इज ग्लूकोज, दिस वन इज ग्लूकोनिक एसिड, और ये है हर्षित सैकरिक एसिड। ठीक है, दोनों की ऑक्सीडेशन जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से की गई तो दे रिजल्टेड इनटू अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, सैकरिक एसिड। इससे कंक्लूजन शौर्य ये निकल के आता है कि ये जो हमने इसमें 5 OH ग्रुप की प्रेजेंस पढ़ी, उन 5 OH में से वन ऑफ द OH ग्रुप इज प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। क्या पता चला कि 5 OH में से एक OH कैसा होना चाहिए, प्राइमरी अल्कोहलिक होना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप ही ऑक्सीडेशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। सेकेंडरी अल्कोहलिक तो कीटोन का फॉर्मेशन करते हैं, राइट। ओनली द प्राइमरी OH ग्रुप फर्स्ट कैन ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड एंड देन टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दिस shows that out of 5 OH group, in glucose, one is primary alcoholic group। 5 OH ग्रुप में एक कैसा है, एक इसमें प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है, तो ये जो है ये पॉइंट्स हैं एविडेंसेस के। दीज आर ऑल द एविडेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ विच द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज वाज प्रपोज्ड। लेकिन सिर्फ इतने ही नहीं है, और भी है, आपके सिलेबस में इतने ही है। इसमें और कई सारी प्रॉपर्टीज और कई सारे रिएक्शंस को स्टडी करने के बाद फिशर हैज गिवन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पहले किसने दिया था, फिशर ने। वो स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, बट आई विल हैव टू इरेज फ्यू पार्ट ओवर हियर। ऊपर टॉप का मैं इरेज करूंगा, आप जस्ट अ मिनट, यू नोट इट डाउन, देन आई विल इरेज द टॉप पार्ट। उसके बाद ऐसे ही छोड़ दूंगा, है ना। यस, सो व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग, that based on these evidences as well as few more properties and other evidences, Fisher has given the structure of glucose. I will be writing the structure of all these 3 compounds. ये तीनों के कंपाउंड के स्ट्रक्चर में लिखूंगा जिसको फिशर ने दिया था। फिशर स्ट्रक्चर भी कहते हैं उसको। पहला है See, this is structure of glucose as it was given by Fisher. ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। Then क्या बच्चों जैसा बिहेव कर रहे हो, बच्चे ही हो बट इतने भी बच्चे नहीं हो। दिस इज सैकरिक एसिड।
एंड दिस वन इज ग्लूकोनिक एसिड। ये क्या है? लास्ट वाला ग्लूकोनिक एसिड। तो इसका नाम मैं यहाँ पे कहीं एडजस्ट करके लिख देता हूँ। दिस वन इज ग्लूकोज, दिस वन इज सैकरिक एसिड, एंड देन ग्लूकोनिक एसिड। क्लियर? इसमें आप देख रहे हो 6 कार्बन एटम्स आर वेरी क्लियर विजिबल, 1 2 3 4 5 and 6, and you can see that all the 6 carbon atoms are in straight chain, right? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। दूसरा आप ये देखो कि ये जितने भी कार्बन एटम्स इसमें है ना, ये सारे के सारे कार्बन स्टीरियो सेंटर है। नहीं? स्टीरियो सेंटर समझते हो ना? चारों के चारों बॉन्डिंग इनकी डिफरेंट है, आप देख लीजिए। तो स्टीरियो सेंटर मैंने आपको बताया कि जहां भी स्टीरियो सेंटर होगा वहां पे चांसेस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी विल बी देयर, और हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा है दैट दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। नहीं? चलिए, ये तो आपको मैंने बता ही रखा है दैट ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड इट इज नोन एज डेक्स्ट्रोज, बट ग्लूकोज इज आल्सो रिटन एज, ग्लूकोज इज आल्सो नेम्ड एज डी प्लस ग्लूकोज। ग्लूकोज को हम डी प्लस ग्लूकोज भी कहते हैं। अब ये डी प्लस ग्लूकोज क्या है, ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी आइसोमेरिज्म में पढ़ाया हुआ है। जब मैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ा रहा था उस वक्त मैंने आपको बताया है कि इस डी का मतलब क्या होता है। नहीं, डी इज नॉट हियर फॉर डेक्स्ट्रो, प्लस साइन हियर इज फॉर डेक्स्ट्रो। डी स्टैंड्स फॉर कॉन्फ़िगरेशन। डी किसके लिए है? फॉर द configuration. And how this configuration is determined? So this configuration is determined by comparing it with the isomers of glyceraldehyde. देखिए, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड के मैंने 2 आइसोमर लिखे हैं, प्लस एंड माइनस। ठीक है? द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज और कार्बोहाइड्रेट्स और सिमिलर कंपाउंड्स आर डिटरमाइंड by comparing the configuration around the lowest asymmetric carbon with the isomers of glyceraldehyde. हम क्या करते हैं, इस लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन पे जो स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हैं, उस स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ एटम को कंपेयर किया जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड के आइसोमर्स से। अगर वो अरेंजमेंट प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड जैसा हुआ, then the compound is said to have D configuration. फिर से रिपीट कर रहा हूं, if the spatial arrangement of atom at lowest asymmetric carbon is comparable with plus glyceraldehyde, then the compound is said to have D configuration. And if it is similar to minus glyceraldehyde or levoglyceraldehyde, then the compound is said to have L configuration. ठीक है, याद रहेगा? तो यहां पे आपको बता दूं, D stands for configuration, D
डी किसके लिए है? कॉन्फ़िगरेशन के लिए, विच इज डिटरमाइंड बाय, कहां लिखूं, विच इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग spatial arrangement at lowest asymmetric carbon with isomers of glyceraldehyde. ठीक है, डी क्या है? डी हियर स्टैंड्स फॉर कॉन्फ़िगरेशन, और कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिटरमाइन की जाती है? बाय कंपेयरिंग स्पेटियल अरेंजमेंट at lowest asymmetric carbon. Spatial arrangement of atoms at lowest asymmetric carbon are compared with the molecule of or the isomers of glyceraldehyde. If it is having the configuration or arrangement similar to plus glyceraldehyde, then it is said to have D configuration, and if the arrangements are like minus glyceraldehyde, it is said to have L configuration. ठीक है, ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. If the spatial arrangement is similar to plus glyceraldehyde, compound is said to have D configuration. And similarly, if the spatial arrangement is like minus glyceraldehyde, the compound is said to have L configuration. Easy? Fine? यहां तक रखते हैं आज हम. इसके बाद नेक्स्ट वी विल बी स्टडिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. ये जो स्ट्रक्चर आपको बताया तो ओपन चेन स्ट्रक्चर है. आपको क्या बताऊंगा अभी नेक्स्ट में? साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. तो साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए भी मैं कुछ एविडेंसेस बताऊंगा कि किस एविडेंसेस पे साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया था और वो साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाता है. अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसका नेमिंग फिर क्या होगा. दैट ऑल थिंग्स वी विल डिस्कस टुमारो. तो कल आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, देन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज एंड डाइसैकेराइड्स, ये सारा कंप्लीट हो जाएगा. मे बी कल हो सकता है आपका पॉलीसैकेराइड्स भी कंप्लीट हो जाए. ठीक है, चलिए, सी यू टुमारो. हाँ, इसका वॉट एवर यू हैव टेकन, यू हैव टू नोट इट डाउन टुडे इटसेल्फ. कल इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए. Okay, yes. Even the notes will be shared in the description part in the PDF file, right? Okay.